بائبل بارڈ سبق 89 سماجی انصاف مقصد ہیلو اور اچھا دن یہ بائبل بارڈ ہے۔ ایک بارڈ ایک کہانی سنانے والا ہوتا ہے جو کسی خاص زبانی روایت سے وابستہ روایتی عبارتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ میں یہاں تلاوت کرنے اور اس بات کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں کہ بائبل کا لٹریچر اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ خدا کون ہے اور کون انسان ہے۔ سبق یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج ہیں، تقریباً 5500 سال قبل کانسی کے دور میں پہلی شہری ریاست کی ترقی کے بعد سے ہی سماجی انصاف ایک انسانی خواہش رہی ہے۔ یو ایس اے میں سماجی انصاف کی جنگجوؤں نے غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ 1700 سے 1800 اشتہار، خواتین کو ووٹ دینے کا حق حاصل کرنا 1920، چائلڈ لیبر کا خاتمہ 1938، علیحدگی اور نسلی معیار کا خاتمہ 1950 تا 1960، اور پھر ہمارے دور میں وسیع کیا گیا تاکہ میکسیکن کے حقوق کے حصول اور امریکیوں کے تحفظ کو شامل کیا جا سکے۔ ہم جنس پرست، جنسی ہراسانی اور جنسی حملہ، پولیس کی بربریت اور دولت کی عدم مساوات اور ماحولیاتی انصاف۔ بائبل نے موسیٰ کے قانون تقریباً 1400 قبل مسیح میں سماجی انصاف کو فروغ دیا جو تقریباً 3500 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ موسیٰ کے قانون میں شامل کچھ بنیادی قوانین یہ ہیں جو خاص طبقے کے افراد کے لیے سماجی غور و فکر کا آغاز فراہم کرتے ہیں۔ خروج 2 باب 21 آیت، ایک عبرانی غلام کو 6 سال کی خدمت کرنے کے بعد آزاد کیا جانا ہے۔ مالکان کی طرف سے اپنے غلاموں کے خلاف مخصوص قسم کا تشدد قابل سزا ہے۔ خروج 20 باب 21 آیت، چھڑی سے مارنا، اور جو غلام مالک کے تشدد سے آنکھ یا دانت کھو دیتے ہیں انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے۔ خروج 21 باب 26 آیت، لیوٹکس 25 باب 53 آیت بھی دیکھیں کہ مشاہدہ کریں شدہ نوکروں کے مالکان اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ معاہدے کے مکال جن کے وہ خدمت کے مقروض ہیں ان پر بے رحمی سے حکومت نہ کریں۔ استثنا 12 باب اس کی 15 آیت کو بھی دیکھیں۔ خروج 2 باب 10 آیت، شادی شدہ خواتین کے حقوق بامشمول خوراک، لباس اور جنگی حقوق۔ خروج 22 باب اس کی 21 آیت بیان کرتا ہے کسی پردیسی کے ساتھ بدسلوکی یا ظلم نہ کرو۔ خروج 22 باب اس کی 22 آیت بیان کرتا ہے بیوہ یا یتیم سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ خروج 26 باب 6 آیت میں کہا گیا ہے اپنے غریب لوگوں کو ان کے مقدمات میں انصاف سے انکار نہ کریں۔ خروج 26 باب 3 آیت میں کہا گیا ہے مقدمہ میں کسی غریب کی طرفداری نہ کریں۔ قانون میں یہ 2 تبصرے ظاہر کرتے ہیں کہ اندھا انصاف کا ایک اصول حکم دیا گیا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ مقدمہ میں شامل افراد کی سماجی حیثیت کچھ بھی ہو، یہ اصول حبار 19 باب 15 آیت میں بیان کیا گیا ہے انصاف کو خراب نہ کرو، غریبوں کی طرفداری نہ کرو اور بڑے کی طرفداری نہ کرو بلکہ اپنے پڑوسی کا انصاف کرو۔ یہ بھی دیکھو استثنا 24 باب 17 آیت، پردیسی یا یتیم کو انصاف سے محروم نہ کرو یا بیوہ کی چادر کو گروئی رکھو۔ خروج 10 باب اس کی 11 سے 23 آیت فراہم کرتا ہے کہ سبت کے سال کے دوران 7 سال کی مدت کا آخری سال جب زمین گرنے والی تھی۔ احبار 4 باب 7 آیت سے 25 آیت بھی دیکھیں۔ استثنا 19 باب اس کی 22 سے 24 آیت،
फसलों की कटाई के बारे में असूल फराहम करता है, जो गैर मुल्कियों, यतीमों और बेवाओं को खेतों, अंगूर के बागों और बागात में जाने की इजाज़त देता है, ताकि फसल काटने वालों की कमी हो जाए। अहबार 19 बाब उसकी 14 आयत मजदूरों के लिए कुछ समाजी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करता है, जिसमें कहा गया है, बहरों को बद्दुआ ना दो और ना ही अंधे के सामने ठोकर का निशाना बनो। बाद में सहीफों में बाइबल समाजी इंसाफ के बारे में अमूमी हदायत फराहम करती है, जो इस बात पर मबनी है कि खुदा एक शख्स के तौर पर कौन है। मिसाल के तौर पर ज़बूर 8 उसकी 9 आयत, वो रास्तबाजी से दुनिया पर हुक्मरानी करता है और लोगों का इंसाफ के साथ इंसाफ करता है, इसलिए खुदा मोहताजों को भी नहीं भूलेगा। ज़बूर 9 उसकी 18 आयत, खुदा को हुक्म दिया गया है, बेबसों को मत भूलो। ज़बूर 10 उसकी 12 आयत और ज़बूर 10 उसकी 14 आयत के साथ, लेकिन ए खुदा, तुम मुसीबत ज़दों की मुसीबत को देखता है, तो इनके दुख को समझता है और इसे हाथ में लेता है। मुतासरीन अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देते हैं, तो यतीमों का मददगार है। और खुदावंद अपने आसमानी तख्त पर है, वो जमीन पर सबको देखता है, उसकी आंखें उनकी जांच करती हैं, क्योंकि खुदावंद रास्तबाज है, उसे इंसाफ पसंद है। ज़बूर 4 उसकी 7 से 11 आयत। ये इबारतें बाइबल के अदब का एक छोटा सा हिस्सा है, जो इंसानी माशरे के बारे में खुदा के नज़रिए पर बहस करती है। बाइबल के मुसन्निफीन अशरफिया नहीं हैं, जो माशरे के मुख्तलिफ तबकों के शहरियों के मसाइब का नोटिस नहीं लेते हैं, खास तौर पर गरीबों, बेवाओं और यतीमों के तौर पर दर्जा बंदी करते हैं, क्योंकि ये कदीम इम्तियाजात नाकाफी वसाइल वाले लोगों को निशान जद करते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हैं, बेवाएं और यतीम। बहस बाइबल से नावाकिफ़ लोग जो अदब के एक मजमूआ के तौर पर अक्सर नहीं समझते हैं, वो है बाइबल में मौजूद समाजी कवानीन की वसात और जामियत। जब दूसरे कदीम समाजी ज़ाब्तों का मुआजना किया जाए, जैसे कि उर्नमू, हमराही, हट्टियों और मिस्रियों के कानूनी ज़ाब्तों से, आपको पिछली समाजी हदायत की कमी को समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर ज़ाब्ता उर्नमू में तकरीबन 40 कवानीन दर्ज हैं। ज़ाब्ता जमुराबी में तकरीबन 280 कवानीन दर्ज हैं। कदीम हेटी तहजीब में तकरीबन 200 कवानीन थे, जबकि मिस्रियों के पास कुछ बुनियादी असूल थे। माँ में सच्चाई और इंसाफ, इनके पास कवानीन का इतना मजमुआ नहीं था जितना फ़िरौन के फरमान पर मबनी रस्म और रिवाज का मजमुआ था। ताहम कवानीन की तादाद, इनकी वसत और गहराई, जैसा कि बाइबल में पाया जाता है, कांसी के ज़माने से हमारे पास आने वाला सबसे वसी और मुफसल कानूनी निज़ाम है। बाइबल की पहली 5 किताबों तौरात में 613 अहकाम हैं, जिनमें समाजी इंसाफ के कवानीन शामिल हैं, जिनमें गरीबों की देखभाल, गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़, कर्ज़ों की मुआफ़ी वगैरह की तफसील है। खुलासा बाइबल बोर्ड इन लोगों के लिए मवाद और सियाक़-ओ-सबाक़ फराहम करने में दिलचस्पी रखता है जो बाइबल के मतन से नावाकिफ़ हैं। ये अदब अक्सर अकेडमी में दड़कता है। मगरिब के मुख्तलिफ समाजी गिरोहों में बगैर पढ़े इसकी मज़म्मत की जाती है, जो इसके मवाद से नावाकिफ़ हैं। मिसाल के तौर पर क्रिस्टोफर हैचन्स कहते हैं, बिलाशुबा बाइबल में इंसानों की स्मगलिंग, नस्ली सफाई, गुलामी, दुल्हन की कीमत और अंधाधुंध कत्ल आम के लिए एक वारंट मौजूद हो सकता है, लेकिन हम इसमें से किसी के पाबंद नहीं हैं, क्योंकि इसे खाम, गैर मजहब
इंसानी जानवरों ने इकट्ठा किया था। खुदा की तरफ से अजीम नहीं, मजहब हर चीज को कैसे जहर देता है। 2007 बाब 7। जबकि रिचर्ड डॉकंस कहते हैं, अहदनामा कदीम का खुदा तमाम अफसानों में सबसे नाखुशगवार करदार है, गैरतमंद और इस पर फकर एक छोटा गैर मुसनफाना नाकाबिल मुआफी कंट्रोल फरेक, एक बदला लेने वाला खूनख्वार नस्ली सफाई करने वाला, एक बद इंतजामी हमजन्स परस्त नस्ल परस्त बच्चों को कत्ल करने वाला नस्ल परस्ताना नस्ल परस्ताना नस्ल परस्ताना दलफरेब तौर पर बदमाश बर्ट्रैंड रसल, जिसने एक किताब भी लिखी जिसका अनवान था क्यों मैं ईसाई नहीं हूँ, कहते हैं, मैं जानबूझकर कहता हूँ कि मसीह मजहब, जैसा कि इसके गिरजाघरों में मंजम है, दुनिया में इखलाकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है और अब भी है। वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, और मजहब और मुतलका मजामीन पर दिगर मजामीन से, यहाँ तक कि ये तीनों बाइबल के ताने देने वाले भी तस्लीम करते हैं कि बाइबल के मतन से इनकी ज़ाती वाकफियत कमज़ोर है। ऐसा लगता है कि हचेंस सिर्फ इन बयानात के लिए मतन तलाश करता है जिस पर वो तनकीद कर सकता है, और सियाको सबाक की जांच करने वाले किसी भी पढ़ने की मुखालफत करता है। डॉकंस ने एतराफ़ किया है कि इसने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी है, जबकि रसल मसीही नज़रिए और तारीखी असरात पर तवज्जो मरकूज करता है, जिसके बारे में चर्च दावा करते हैं कि ये बाइबल से अखज़ किया गया है। वो खुद बाइबल की तालीमात से नावाकिफ हैं। इस्तारे हिस्सा 3 खुदा से मुतल्लिक। बीबी सबक 32 बाइबल लोगों से क्या चाहती है। बीबी सबक 6 बाइबल कैसे लिखी गई, और बीबी सबक 47 बाइबल कैसे लिखी गई। हिस्सा 2। बीबी सबक 55 खुदा की नज़र में दुरुस्त। बीबी सबक 69 मुकद्दस नसूस तक रसाई। बीबी सबक 77 बाइबल और गुलामी। बीबी सबक 84 अमरीकी हिंदुस्तानियों का मसीही मिशन। नतीजा, ये बाइबल बोर्ड काम करने का तरीका है। मुख्तसर कुरात पर तवज्जो मरकूज की जाती है। कोई खिलफशाह नहीं, खरगोश के रास्ते नहीं। बाइबल बोर्ड पेश करता है जो बाइबल किसी मौजू के बारे में सिखाती है। मैं आपको किसी मजहब में तब्दील करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बाइबल बोर्ड पॉडकास्ट मालूमाती है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि बाइबल का अदब दरअसल क्या बयान करता है। ये जो नजरियात और तस्वुरात पेश करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी भी बाइबल के ख्यालात से मुंसलिक नहीं होते। अपना फैसला खुद करें, चाहे आप बाइबल के बयानात से मुतफिक हो या इख्तलाफ। पैट्रियन पर बाइबल बोर्ड पॉडकास्ट की हिमायत करें। कम अज कम $1 हफ्ता या $5 माह पॉडकास्ट के अखराजात को पूरा करने में मदद करता है। आप गो फंड मी पर भी दे सकते हैं। बाइबल बोर्ड खुद कोई तनख्वाह नहीं लेता और वजारत के हामियों के तहाइफ से माली फायदा नहीं उठाता। बाइबल बोर्ड US@gmail.com पर बाइबल बोर्ड को कोई सवाल या तबसरा भेजें। आपसे सुनकर खुशी हुई। कनकेशंस। मंदरजा झेल के तौर पर बाइबल बोर्ड के मवाद की पैरवी और इश्तराक करने के लिए पेशगी। शुक्रिया।